Hello students, in this video I am going to explain exercise 8.3. We have studied about ratios in last video. We have seen what is percentage also. In this video you will learn how to convert ratio to percentage. If ratio is given to you, how you will convert it into percentage. Suppose this ratio is given 3:1 and you want to convert it into percentage. So how will you do it? 3:1. So first of all you have to find out the sum of the ratio. Sum of the ratio you have to find. What will be the sum of ratio? You have to add it. 3 and 1. You have to add 3 and 1. So it will become 3 plus 1 is equal to 4. So sum of ratio comes out to be 4. इट मीन्स आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, देयर आर टोटल 4 पार्ट्स. कोई भी चीज़ के टोटल 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है और ये फर्स्ट पार्ट में उसके पास है 3 पार्ट्स और यहाँ पर उसके पास है 1 पार्ट. तो टोटल 4 पार्ट्स हैं और वो इस तरीके से डिवाइडेड है 3 पार्ट्स एंड 1 पार्ट. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. सो दिस इज 3 first part. what will be the percentage of that? यहाँ पर इसके पास कितने पार्ट हैं? 3. out of total 4, 3. it means 3 divided by sum of ratio, because we are converting it into percentage और percentage में convert करने के लिए we have to multiply it by 100. So it comes out to be 3/4 multiply 100. When you will cut, you will get 25. 25 multiplied by 3 is 75. This is the percentage. So you have to write the percentage symbol also, 75%. And then this part, second part also we want to calculate. How will you calculate second part? In a similar way, here it is 1 divided by sum of ratio. What is the sum of ratio? Same, 4. So 1/4 multiply 100. 4 ones are 4 and here 25. So you get 25%. See, 75% and 25%. It means this part is 75% and this part is 25%. See, you can recheck the answer also. Whenever you will add these percentages, you always get 100. 75 plus 25 is 100. अगर इन दोनों का सम 100 नहीं आता है तो इट मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग. यू कैन रीचेक it by doing this. We will solve one another question. In this ratio is given 2:3:5. We have to convert it into percentage. We are going to use the same method. First we have to find the sum of ratio. हमें रेशियो का सम फाइंड आउट करना है. 2 + 3 + 5. यहाँ पर ओनली 2 रेशियो ऑफ 2 इज गिवन. रेशियो ऑफ 2 इज गिवन. हेयर इट इज रेशियो ऑफ 3. तो वहाँ पर हमने दोनों रेशियो को ऐड किया. इन दिस वी आर गोइंग टू ऐड दिस होल 3. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट रेशियो ऑफ 4 इज गिवन. 4 नंबर्स का रेशियो भी हो सकता है, 5 नंबर का रेशियो भी गिवन हो सकता है. तो जितने भी नंबर्स आपको गिवन है, यू हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स. तो यहाँ पर 3 नंबर्स का रेशियो है. वी हैव टू ऐड ऑल 3. व्हाट विल यू गेट? 10. सम इज 10. तो रेशियो का सम आया 10. तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट? सी, फर्स्ट पार्ट कितना है? 2 out of 10. So it will be 2/10 multiply by 100. 0 0 cut, it will be
20%. And what will be second part? Second is 3. So it is 3 upon 10 multiply 100. It will be 30%. 30%, 20%, and then third part. Third part is 5 upon 10 multiply 100. It will be 50%. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो इक्विवेलेंट है 20% के, सेकेंड इज 30% एंड थर्ड इज 50%. You can see the sum will always be 100. 50 plus 30 plus 20 is equal to 100. If you are not getting the sum of 100, it means you are doing it wrong way. Your answer is not correct. In this type of question, sum of these percentage will be always be 100. So this was a method how you will convert the given ratio to percentage. Next thing is that how to calculate increase, how to represent increase or decrease as percentage. Suppose कोई भी चीज़ का वेट 10 kg है and after some days if you recheck it is 20 kg. वेट पहले 10 kg था, वो बढ़ के 20 kg हो गया है. इट मीन्स देयर इज सम इंक्रीज. कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है बट हमें पता है कि वो कितना इंक्रीज हो रही है. 10 से 20 में कन्वर्ट हो गई है तो कितना इंक्रीज हुआ, कितने केजी इंक्रीज हुआ, वी कैन इजीली कैलकुलेट. 20 माइनस 10 kg का इंक्रीमेंट है, वी नो 10 kg इंक्रीमेंट हुआ है बट दिस इज़ नॉट इन परसेंटेज. हमें केजी में तो मालूम है कि कितना इंक्रीज हुआ है बट वी डोंट नो द परसेंटेज. कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है. इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ विल यू डू इट, दैट आई विल शो यू. So for that what you have to do, first of all you have to find the change. कितना चेंज हुआ है. 10 से 20 kg अगर कोई वेट हो गया है तो उसमें कितना चेंज हुआ है, 10 kg का. यू नो इट इज़ 10 kg. सो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल वैल्यू multiply by 100. This is the percentage how you will calculate the percentage. कितना चेंज हुआ है तो यहाँ पर कितना चेंज हुआ है 10 kg. तो 10 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू. स्टार्टिंग में वेट कितना था, आपको ये चेक करना है कि स्टार्टिंग में कितना था. तो सबसे पहले 10 था तो इट मीन्स 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100. So when you will calculate you will get 100. It means it is a change, it is an increase of 100%. 100% जो वेट है वो इंक्रीज हुआ है. That's how you will calculate in percentage. I will show you another example. The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. In this case there is not an increase. इंक्रीज नहीं हो रहा है बट डिक्रीज हो रहा है. सो हमें परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करना है बट द मेथड इज सेम. सी पॉपुलेशन 25,000 से कितनी हो गई है, पहले 25,000 थी फिर हो गई है 24,500. सो कितना चेंज हुआ है. हाउ विल यू फाइंड द चेंज. माइनस करके 25,000 माइनस 24,500 कितना चेंज हुआ है 500 का. जो परसेंटेज में जो चेंज है वो 500 का चेंज हुआ है. पॉपुलेशन 500 डिक्रीज हो गई है. सो दिस इज द चेंज एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू. सो दिस इज द चेंज 500
divided by ओरिजिनल वैल्यू. व्हाट इज़ द ओरिजिनल वैल्यू? इट मीन जो स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी, सबसे पहले पॉपुलेशन कितनी थी? 25,000. हमें हमेशा इनिशियल वैल्यू ही लेनी है, ओरिजिनल वैल्यू. वट एवर वी आर फाइंडिंग, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हमें ओरिजिनल वैल्यू ही लेनी है जो पहले थी. पहले अगर इंक्रीज वैल्यू थी, ज़्यादा थी तो ज़्यादा लेनी है, पहले कम थी तो कम लेनी है. पहले 25,000 था पॉपुलेशन, तो हमें 25,000 ही लेना है. मल्टीप्लाई बाय 100. You have to solve it and you will get the answer. 0 0 cancel. 5 ones are 5. 0 0 cancel. 5 ones are 5. 5 5s are 25. 5 ones are 1. 5 2s are 10. So when you will simplify it, you will get 2%. The answer is 2%. It means जो population है वो decrease हो रही है. This is the decrease percentage. 2% decrease हो रहा है. Next topic is profit or loss as a percentage. Profit and loss you already know. अब हम प्रॉफिट और लॉस को भी किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, दैट वी विल लर्न. सो व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस? व्हेन यू बाय एनीथिंग, जब आप कुछ भी परचेज करते हो, वो होता है CP. इट इज़ द कॉस्ट प्राइस. व्हेन यू बाय एनीथिंग, तो जिस प्राइस पे हम कोई भी चीज़, कोई भी थिंग परचेज करते हैं, वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है. एंड व्हाट इज़ SP? सेलिंग प्राइस. जिस प्राइस पे हम, व्हेन वी सेल इट, जिस प्राइस पे हम लोग सेल करते हैं, वो सेलिंग प्राइस होता है. CP इज़ द कॉस्ट प्राइस. जिस चीज़ पे, जिस प्राइस पे हमने ख़रीदा है. सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे हमने बेचा है. सो देयर कैन बी अ प्रॉफिट एंड देयर कैन बी अ लॉस. या तो हमें प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है. प्रॉफिट कब होगा? when CP is less than SP. इट मीन्स जो प्राइस पे हमने ख़रीदा है वो कम है और जिस प्राइस पे हमने बेचा है वो ज़्यादा है. अगर हम ज़्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं, इट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है. लॉस मीन्स जब हम जो ख़रीदा है वो प्राइस ज़्यादा है. इट मीन्स CP इज़ ग्रेटर देन SP. इन दैट केस it is a loss. And how will you calculate the profit? Profit is SP minus CP. Selling price minus cost price. If you calculate this, you will get the profit. And if you want to calculate loss, it means CP minus SP. Cost price minus selling price. इट इज़ वेरी सिंपल. देखो, जब कोई भी हम चीज़ ज़्यादा प्राइस पे ख़रीद रहे हैं, उसके लिए हमने ज़्यादा पे किया है, बट जब हम उसको बेच रहे हैं तो हमें उसका कम प्राइस रिटर्न में मिल रहा है. हमने उस पर ज़्यादा पैसा लगाया. इन दैट केस वी विल गेट द लॉस. जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, हमने ज़्यादा प्राइस में उसको ख़रीदा है, तो हमें लॉस होगा. और अगर हमने उसको महंगा बेचा है और कम प्राइस पे उसको ख़रीदा था, तो उस केस में प्रॉफिट होगा. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर गेटिंग द प्रॉफिट एंड दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर लॉस. वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस. I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? So what is CP? Rupees 10,000. जो टीवी है, किस प्राइस पे मैंने ख़रीदा? 10,000 पे. एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. उसको 20% के प्रॉफिट पे मैंने बेचा है. देन वी हैव टू टेल कितने प्राइस पे उसको
मुझे उसको बेचने का, सेल करने का कितने प्राइस मिलेगा. इट मीन्स आई हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस. एंड प्रॉफिट इज गिवन ऑफ 20%. सो सबसे पहले व्हाट आई हैव टू डू, आई विल एक्चुअली फाइंड द प्रॉफिट कि मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट इज 20%. सो प्रॉफिट इज 20% of what? 20% of 10,000. So first we will find out the 20% of 10,000, जो कि हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 8.2 में सीख चुके हैं. 20 divided by 100 multiply by 10,000. That's how you will calculate. 20 cut, 20 cut, and this is 2,000 rupees. 2,000 rupees जो है वो प्रॉफिट हो रहा है. So what will be the selling price? Selling price will be cost price plus profit. जितने का मैंने खरीदा था उसमें मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है, तो प्रॉफिट को अगर मैं ऐड कर देती हूँ देन आई विल गेट द CP. These are the formulas that you have to learn. So CP is 10,000 and profit is of 2,000. So there will be SP of selling price will be of rupees 12,000. That's how you calculate it. Some formulas you have to learn. Some cost, profit and loss formulas, cost price, selling price, you have to learn for this. Practice more and more questions for this exercise. Goodbye.